if an element A belongs to K, which is a algebraic over F, then monic polynomial of smallest degree over F satisfied by A is called a minimal polynomials। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ previous theorem ਦੇ ਵਿੱਚ prove ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ px ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ minimal polynomial ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ over f, and it is denoted by in this form। So this is a notation, so this is a notation of minimal polynomial of A, the minimal polynomial of A over f। So if the degree of minimal polynomial over f is m, then A is algebraic over f of degree m। So जो minimal polynomial ਦੀ degree ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ A is algebraic over f of degree m। Now next is show that the minimal polynomial px of an algebraic element A belongs to K over f is irreducible। So this is very important result। तो ਅਸੀਂ ਇਹ prove ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ minimal polynomials है वो minimal polynomial ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ वो minimal polynomial ਸਾਡੇ ਕੋਲ irreducible ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ irreducible ਨੂੰ prove ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੋ irreducible ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ prove ਕਰੀਦਾ ਅਗਰ irreducible polynomial ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ factorize ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋ polynomial 'ਚ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਡਿਗਰੀ either first 0 or second 0 then it is called irreducible। अगर दोनों की डिग्री 0 तो बड़ी हो जाए सो उस केस दे विच साडे कोल reducible polynomial हो जाए। Now to prove this result, so what is the solutions? So I take, so this is solution। So first this is a px polynomial, and since degree of px ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ polynomial ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ greater than 0। अगर डिग्री px polynomial ਦੀ greater than 0 है so it means px polynomial is a non-unit, ठीक है जी, क्योंकि non-unit होएगा। अगर non-unit है तो irreducible की पहली डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई। Now suppose px can be written as product of two polynomial। एक polynomial का नाम रख लिए rx, दूजे का नाम रख लिए sx, और where these polynomial rx and sx ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਚ irreducible ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ f ਦੇ ਉੱਤੇ। So this belongs to f of x, so this is polynomial over f। Now what it means, if this is equal to this values, now it implies so a is satisfied this polynomial, then 0 is equal to p of a which is equal to ra which is equal to sa, this values। So ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ represent ਕਰਤਾ। So what it means, it means either first is 0 or second is 0, so this product is equal to 0। अगर साढ़े कोल 0 आ गया so it implies ra is 0 or sa is equal to 0। तो असी पिछली थ्योरम कीती सीगी, what it means px divide rx,
ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ px डिवाइड sx, दिस वैल्यूज आ गई। ठीक है जी। तो px rx ਨੂੰ डिवाइड भी कर सकता और px sx ਨੂੰ भी डिवाइड कर सकता। और ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ पता rx ਜਿਹੜਾ है वो px ਨੂੰ भी डिवाइड कर रहा और sx भी px ਨੂੰ डिवाइड कर रहा। सो इट implies either px is associated to rx or px is associated to sx। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ rx ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ sx ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ this ਆ ਗਿਆ then it implies this px which is a, अगर एसोसीएट हो गया rx ना तो दूजा एलिमेंट यूनिट हो गया, जे sx ना एसोसीएट हो गया तो rx यूनिट हो गया। सो px साढ़े को इररेड्यूसिबल एलिमेंट बन गया। सो दिस इज इररेड्यूसिबल एलिमेंट। सो इररेड्यूसिबल एलिमेंट की की डेफिनेशन होंदी सी आइदर फर्स्ट एलिमेंट इज यूनिट और सैकेंड एलिमेंट इज यूनिट। सो ये साढ़े को जिहड़ी है वो इररेड्यूसिबल की डेफिनेशन आ गई। उस तो बाद जिहड़ी मेरे को नैक्सट थ्योरम सी या नैक्सट थ्योरम है, सो उहदी स्टेटमेंट की सी कि अगर मेरे को A बिलोंग्स टू K, सो दिस इज ए अलजबराइक ओवर F है। ठीक है जी। सो बाकी डेफिनेशन बिल्कुल उस ढंग नाल कि उहदी एक्सटेंशन है, फील्ड एक्सटेंशन है F दी और A अलजबराइक हो गई, तो असी प्रूव करना then show that F generated A is equal to F square of A। सो पहला आप इन्हां दोनों का मतलब नूं समझ लईए। अगर साडे कोल F स्केयर A की गल करिए तो इट इज़ ए पॉलीनोमियल सैट ऑफ पॉलीनोमियल्स साडे कोल जिहदे कोएफिशिएंट F नूं बिलोंग करते हैं जदों आपां A की गल की। और जदों साडे कोल F ऑफ A की गल की, सो इट इज़ अ फील्ड जनरेटेड बाय F यूनियन A। इट इज़ अ फील्ड जनरेटेड बाय F यूनियन A। जदों आपां इस चीज़ की गल की तो साडे कोल A वैल्यूज बच जाती है। नाउ इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए मैं की करूँगा, मैं डिफाइन करूँगा एक मैप फाई और ये मैप डिफाइन की मैं एफ एक्स तो एफ ऑफ ए दे उत्ते। सो मतलब ये है कि दोनों पॉलीनोमियल आ, एक वेरीएबल एक्स है दूजे का वेरीएबल ए है, सच दैट फाई इत्थे हो गया एफ एक्स और दूजे पासे एफ ऑफ ए और दोनों पॉलीनोमियल एफ दे उत्ते है, यानी कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स। सो दोनों की जिहड़ी वैल्यूज आ इनू बिलोंग करती है। सो वी ईजिली वेरीफाई दैट इट इज़ ए होमोमॉर्फिज्म एज वेल एज ऑनटो। सो फर्स्ट टू प्रूव होमोमॉर्फिज्म I take two polynomials fx comma gx belongs to f of x। सो रिंग होमोमॉर्फिज्म दी दो प्रॉपर्टीज होंदियां, एक सम वाली दूजी प्रोडक्ट वाली। सो असी सम की गल करिए, सो साडे कोल आ गया फाई ऑफ एफ एक्स प्लस gx। so this value can be written as phi bracket polynomial forms f plus g of x और जदों असी मैपिंग की डेफिनेशन लाती तो ये कन्वर्ट हो जाएगी f plus g
ऑफ ए और इनू आप लिख सकते हैं एफ ए प्लस जी ए और ये साढ़े को वैल्यू बन गई फाई एफ एक्स प्लस फाई जी एक्स। सो ये बराबर लिख सकते हैं। सो सेम ही असी प्रोडक्ट दे विच एफ एक्स इंटू जी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू अगेन फाई ब्रैकेट एफ जी ऑफ ए, दिस वैल्यूज आ गई, और एफ जी ऑफ एक्स है ना। सो हुण असी जो मैपिंग लै ली एफ जी ए नाल ऑपरेट करता। सो दिस वैल्यू इज अगेन एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए। सो दिस वैल्यू फाई ऑफ एफ एक्स प्लस इंटू फाई ऑफ जी एक्स। So this is a clearly this mapping is a ring homomorphism. Also it is a onto. Why it is onto? Because this is for every FA belongs to FA, there exists F of X belongs to f of x and such that phi of f x which is equal to f of a, right? So it means it is a onto. So what we get this mapping from f of x to f of a. So this is a ring homomorphism, so as well as onto. So this is a ring homomorphism as well as onto. So here we can apply the theorem of fundamental theorem of homomorphism. So by using the fundamental theorem of homomorphism, by fundamental theorem of homomorphism, right hand side means f of a, f square bracket a is isomorphic to f x over कर्नल ऑफ फाई। हम चेक करिए कि कर्नल ऑफ फाई साडे कोल क्या है। नाउ दिस इज ए सेट ऑफ पॉलिनोमियल, सो वी नो दैट दिस इज ए इंटेग्रल डोमेन, दिस इज ए इंटेग्रल डोमेन। क्लियर जी। दूजे पासे चेक करिए, जे इंटेग्रल डोमेन है तो इट मीनस राइट हैंड साइड भी साडे कोल इंटेग्रल डोमेन होगी क्योंकि आइसोमॉर्फिक है। सो राइट हैंड साइड भी इंटेग्रल डोमेन होगी और कर्नल फाई साडे कोल कर्नल ऑफ फाई वो साडे कोल आइडियल हो गया किदा एफ एक्स का। एफ एक्स की है यूनीक डोमेन और यूनीक आइडियल डोमेन क्या होंदा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। सो एफ ऑफ एक्स ये सानू दिता असी प्रूव कर चुके हैं यूक्लिडियन डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन और यूक्लिडियन डोमेन क्या होंदा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। सो याद रखना। और कर्नल फाई साडे कोल इहदा की है, इहदा साडे कोल आ गया प्राइम आइडियल आ गया। सो दिस इज ए
प्राइम आइडियल ऑफ PID जिहड़ा हुंदा वो मैक्सीमल हुंदा। सो कर्नल फाई ये साडे कोल इहदा आइडियल आ गया एंड दिस इज ए इंटैग्रल डोमेन, क्योंकि ये इंटैग्रल डोमेन हो गई तो कर्नल फाई FX का साडे कोल की बन गया, प्राइम आइडियल बन गया। तो एक तो हो गया कर्नल फाई साडे कोल प्राइम आइडियल ऑफ FX, ठीक है जी। और FX हो गया प्रिंसीपल आइडियल डोमेन। तो असी दूजी थ्योरम की पढ़ी है कि प्राइम आइडियल प्रिंसीपल आइडियल डोमेन च हमेशा मैक्सीमल होंदा। तो कर्नल फाई साडे कोल मैक्सीमल आइडियल बन गया, आइडियल ऑफ FX हो गया। फिर अगली थ्योरम लाती, अगर M मैक्सीमल है R बाय M इज फील्ड, सो FX ओवर कर्नल ऑफ फाई ये साडे कोल फील्ड बन गया, ठीक है जी। सो ये दो जड़ियाँ आपां थ्योरमां की गल करते हैं वो दोनों अप्लाई कीतियां। एक तो सी कि R बाय P इंटैग्रल डोमेन if and only if P is प्राइम आइडियल, रफ जिहा आइडिया दे दिया। और दूजी सी कि अगर M मैक्सीमल आइडियल है तो R बाय M फील्ड होंदा। सो उन्हां दोनों थ्योरम नाल ये साडे कोल फील्ड बन गया। इहदा मतलब कि जिहड़ी साडे कोल लैफ्ट हैंड साइड है वो भी फील्ड होएगी। सो दिस इज ए लैफ्ट हैंड साइड F स्केयर ऑफ ए भी फील्ड बन जाएगी, ठीक है जी। दूजे पासे तुसी इस गल नूं समझण दी कोशिश करो, वट इज द FA? सो इट इज ए smallest field generated by smallest field containing F and A, containing F and A, सब तो छोटी फील्ड जिहड़ी F ते A नूं कंटेन कर रही। सो इहदा मतलब की आ गया, इहदा मतलब कि आ भी फील्ड आ, इहदे विच भी F ते A है। सो F जनरेटेड बाय A is part of F square of A। क्लियर हो गया जी। आल्सो वी नो दैट जिहड़ी साडे कोल पॉलिनोमियल वाला हिस्सा हुंदा ये फील्ड दा पार्ट है ही है। सो फ्रॉम these two equation we get F this square is equal to F generated by A। So in this way we can prove our result। इस तो बाद आपां मिनिमल पॉलिनोमियल, इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल नूं ही असी मिनिमल पॉलिनोमियल कहने आ। तो पहला असी उहदी डेफिनेशन नूं देख लईए। सो आफ्टर दैट सो मिनिमल पॉलिनोमियल हो गई, मिनिमल पॉलिनोमियल इररेड्यूसिबल हो गई और ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ इस थ्योरम ਨੂੰ प्रूव करता। उस तो बाद ਜਿਹੜੀ मेरी अगली थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी एलिमेंट A belongs to K is algebraic over F if and only if this FA dotted F is finite। और यदि वैल्यू की होएगी डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ A ओवर F। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्लियर, एक्सपेक्टेड फॉर एग्जाम। थ्योरम नूं प्रूव करन लई सो फर्स्ट पार्ट आई टेक लेट FA
f इज इक्वल टू फाइनाइट। सो अगर ये फाइनाइट है तो मैं यदि वैल्यूज n मान ली। सो अगर यदि वैल्यूज मैं n चूज कर ली, सो यदा मतलब यदि बेसिस n वैक्टर्स होंगे तो n तो ज़्यादा वैक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाए। एनी n+1 vectors in FA are linear dependent। सो ये बारे कोई दो राय नहीं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ n+1 ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ 1 ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਡ ਆ ਹੋਏਗਾ, a ਵੀ ਹੋਏਗਾ, a ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਫੀਲਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਔਰ a ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਸੋ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ? n+1। So these n+1 are linear dependent in f of a। ये साढ़े को लीनियर डिपेंडेंट हो गए। जे लीनियर डिपेंडेंट हो गए सो ਇਹਦਾ मतलब साढ़े को की आया by definition of linear dependent। so there exist alpha 0, alpha 1, alpha n not all 0 such that alpha naught plus alpha 1 a plus alpha 2 a square plus alpha n a ਦੀ ਪਾਵਰ n which is equal to 0। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ? ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਨਾਟ ਆਲ 0 ਇਨ f। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ a satisfy a some polynomial over a। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ a satisfy some non-zero polynomial over f। ठीक है जी? a ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਗਰ a ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ, ਸੋ ਵਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ, a is algebraic over f। a is algebraic over f। ठीक है जी? सो पहला पार्ट साडा बड़ा सिंपल सी। हुण आपां आ जाइए कन्वर्स दे विच। नाउ कन्वर्सली हुण a सानू दिता अलजबरिक ओवर f। a मान लो k दे विच है। सो दिस इज अलजबराइक ओवर f। ठीक है जी? पहला स्टेप आ गया। तो मैं प्रूव की करना चाहना एफ ए एफ जेड़ा साढ़े कोल फाइनाइट है। तो अगर ए अलजबराइक ओवर एफ है सो यदी मिनिमल पॉलिनोमियल जरूर होएगी। सो वो मैं ले ली लेट p ऑफ x। सो व्हाट इज दिस? इट इज़ ए मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a ओवर f। इनू इदा भी लिख सकते हैं। और अगर इनू लैंग्वेज च लिखना सो उहदे विच असीं लिखांगे इट इज़ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a। सो दिस इज मिनिमल polynomial of a over f। सो दो तरीके हैं इन्हों लिखण दे। तो असी प्रूव की करना चाहते? असी प्रूव करना चाहते एफ ए एफ ये फाइनाइट होना चाहिए, यानी डिग्री ऑफ पी एक्स के बराबर होना चाहिए। सो इस चीज़ को असी प्रूव करना चाहते। सो ये अपने माइंड च रखना। मान लो डिग्री ऑफ पी एक्स कोई ना कोई तो होएगी, एन मान लीए। ठीक है जी? ਇਹਦਾ मतलब इनू असी
n ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ n ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਵੈਕਟਰ ਲੱਭ ਲਏ। ਸਟੈਪ 1 ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ 1 a ਸਕੇਅਰ a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ 1 ਤੱਕ। n ਹੋ ਗਏ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਔਰ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ? f ਦੇ ਵਿੱਚ। f ਨੂੰ ਛੱਡੋ, f ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, f ਆਫ a ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਦੀ ਸੈਟ ਇਜ਼ not linear independent, then it means ये साइड को लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर लीनियर डिपेंडेंट हो गया सो देयर एग्जिस्ट अल्फा 0 अल्फा 1 सो ऑन अल्फा n माइनस 1 नॉट ऑल 0। ठीक है जी, not all 0 in f such that alpha 0 alpha 1 a alpha 2 a square alpha n minus 1 a ਦੀ ਪਾਵਰ n minus 1 equal to 0। ठीक है जी, तो a किनू सैटिस्फाई कर रहा? एक ऐसी पॉलिनोमियल ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਡਿਗਰੀ n ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ n ਮਾਈਨਸ 1 ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ऑफ डिग्री ਲੈਸ ਦੈਨ n। ठीक है जी, यानी डिग्री ऑफ पी एक्स तो ਲੈਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। सो विच इज़ ए कंट्राडिक्शन? सो विच इज़ कंट्राडिक्शन? क्योंकि सब तो मिनिमल पॉलिनोमियल जिहड़ी है वो पी एक्स है जिहदी डिग्री n है। कंट्राडिक्शन, अगर कंट्राडिक्शन आ गई साडी सपोजिशन रॉन्ग हो गई। साडी सपोजिशन रॉन्ग है तो आ जिहड़ा सैट है ए n माइनस 1 तक ये साडे को लीनियर इंडिपेंडेंट वैक्टर्स बन गए। सो दिस सैट इज लीनियर इंडिपेंडेंट वैक्टर्स। एक पार्ट आ गया। दूजा पार्ट स्पैन वाला। हुण स्पैन दे लई असीं एक थ्योरम कर चुके हैं। सो स्टैप नंबर 2 स्पैन दे लई असीं ऑलरेडी एक थ्योरम कीती सी एफ दिस ए विच इज इक्वल टू एफ जनरेटेड बाय ए। ठीक है जी, तो ਇਹਦਾ मतलब जो ਇਹਦੇ एलिमेंट है वही एफ ए दे एलिमेंट है। सो इफ आई टेक एफ ऑफ ए विच बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए, सो बोथ आर बेसिकली इक्वल। ठीक है जी, सो लीनियर एक्सपेंशन च प्रूव करना और सानू ये पता ये साडे कोल की है, इट इज़ ए सैट ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर सैट ऑफ पॉलिनोमियल है दिस एफ ए कैन बी रिटन एज बीटा नॉट प्लस बीटा 1 ए। कंटिन्यू करते जाओ, बीटा साडे कोल m इंटू ए दी पावर m, ए दी पावर m, वेयर बीटा आई बिलोंग्स टू f और a बारे सानू पता ही है जिहड़ा पैरामीटर है। और यही नू अगर x दे विच एक्सप्रैस करना तो साडे कोल ये पॉलिनोमियल हो जाएगी f ऑफ x बीटा नॉट बीटा 1x प्लस बीटा m x दी पावर m। ठीक है जी,
ਹੁਣ मैं ये डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर लगा। डिवीजन एल्गोरिथम px इनू डिवाइड कर रहे fx पॉलिनोमियल नू, तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम there exist qx and rx in fx such that this polynomial fx which is equal to px qx plus rx where rx is either 0 or degree of rx is less than degree of px। ठीक हो गया जी। सो असी डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करता और ए दी वैल्यू सबस्टिट्यूट करती। साडे कोल बन गया एफ ए विच इज इक्वल टू पी ए क्यू ए प्लस आर ए। ओके जी। सो सिंपल एक्स की जगह पे असी ए नू रिप्लेस करता। सो वट इज दिस एफ ए? दिस एफ ए इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट एफ ए इज ए साडे कोल इहदी गल करनी है। हुण आपां इस डिग्री की गल करिए, दिस डिग्री एफ ऑफ ए यदी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक, और पी ऑफ ए यदी वैल्यूज भी 0 हो जाएगी, ठीक है जी। एफ ऑफ ए इज ना, इनू थोड़ा जा मैं एक्सप्लेन कर देना। सो सिंस P of A साढ़े को 0 है, तो F of A दी वैल्यूज बन गई R A दे बराबर और डिग्री ऑफ आर एक्स लैस दैन है डिग्री ऑफ पी एक्स। पी एक्स की कितनी डिग्री एन। ਇਹਦਾ मतलब आर एक्स पॉलिनोमियल किदां दी होएगी डेल्टा 0 डेल्टा 1 एक्स करते जाइए मैक्सिमम n-1 तक यदी वैल्यू जाएगी वेयर डेल्टा आई बिलोंग्स टू फील्ड। अगर इन्हें बिलोंग कर गया सो अगर मैं इतने आर एक्स की जगह ते ए सबस्टिट्यूट करता तो मेरे को आर ए किदां दी पॉलिनोमियल हो गई। इट इज़ ए लीनियर कंबीनेशन ऑफ लैम्डा 1 ए प्लस सो ऑन लैम्डा n-1 ए दी पावर n-1। सो वट इट मीनस इट इज़ ए लीनियर कंबीनेशन ऑफ जिहड़ा साडे कोल एफ ए है ये किनू बिलोंग कर गया, ये बिलोंग कर गया स्पैंड बाय 1 ए स्केयर ए दी पावर n-1। तो इनू असी लीनियर इंडिपेंडेंट भी प्रूव कर गए सी, तो ये स्पैन भी कर गया। जो स्पैन भी कर गया तो साडे कोल बेसिस बन गया। सो इट इंप्लाइज दिस एफ ए दिस सेट 1 ए स्केयर a n-1। So this is a basis of f a over f। It implies degree of f a over f which is equal to n, which is equal to degree of minimal polynomial px, also
it is a finite. So which is a finite. So which prove our converse part. So this part is very